Hello students, Navankor Vidyapeeth welcomes you in Digi Lessons. Today we shall read about Lesson 5, General English, Class 11th, The Selfish Giant, Swarthi Danav. Those who care only about themselves rather than about other people generally regret their actions in the end. जो लोग अन्य लोगों की परवाह ना करके केवल अपनी परवाह करते हैं वे प्रायः अंत में अपने कार्यों पर पश्चाताप करते हैं. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर प्रत्येक दोपहर को जब बच्चे विद्यालय से आते थे वे दानव के बगीचे में जाते और हमेशा खेला करते थे. It was a large, lovely garden with soft green grass. कोमल हरी घास से युक्त यह एक विशाल प्यारा सा बगीचा था. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. यहाँ वहाँ घास पर तारों के समान सुंदर फूल लगे थे और 12 शफ्तालू मतलब आड़ू के पेड़ थे जिनमें बसंत ऋतु में गुलाबी और मोतिया रंग के कोमल कोमल फूल खिल जाते थे और शरद ऋतु में वे फलों से लद जाते थे. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. पक्षी पेड़ों पर बैठते और इतना मधुर गाते कि उनको सुनने के लिए बच्चे अपने खेल बंद कर देते थे. How happy we are here, they cried to each other. वे परस्पर आपस में कहते हम यहाँ कितने खुश हैं. One day the giant came back. एक दिन वो दानव वापस आ गया. He had been to visit his friend the Cornish ogre and had stayed with him for 7 years. वह अपने कॉर्न वाली दैत्य मित्र से मिलने गया था. 7 साल पूरे हो जाने पर after the 7 years were over, he had said all that he had to say, for his conversation was limited and he determined to return to his own castle. 7 साल पूरे हो जाने पर जो कुछ उसने उसे कहना था वह कह चुका था क्योंकि उसका वार्तालाप सीमित था और उसने अपने किले पर लौटने का निश्चय कर लिया. When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वह आया उसने बगीचे में बच्चों को खेलते हुए देखा. What are you doing here? He cried in very gruff voice. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह बहुत भद्दी आवाज में चिल्लाया और बच्चे भाग गए. The children ran away. My own garden is my own garden, said the giant. मेरा बगीचा मेरा अपना बगीचा है. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. दानव बोला हर किसी को यह बात समझ में आ जाना चाहिए कि मैं अपने अलावा किसी को खेलने की अनुमति नहीं दूंगा. So he built a high wall all round it and put up a notice board. Trespassers will be prosecuted. इसलिए उसने इसके चारों ओर ऊंची दीवार बनवा दी और एक सूचना पट लगवा दिया. उस पर लिखा था अनाधिकृत प्रवेश करने वालों पर अभियोग चलाया जाएगा. He was a very selfish giant. वह एक बहुत स्वार्थी दानव था. The poor children had now nowhere to play. अब बेचारे बच्चों को खेलने के लिए कोई स्थान नहीं था. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones.
and they did not like it. अब बेचारे बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई स्थान नहीं था। उन्होंने सड़क पर खेलने की कोशिश की, पर सड़क पर बहुत धूल थी, वह पत्थरों से भरी थी, वह उन्हें पसंद नहीं आई। They used to wander round the high wall when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. जब उनकी विद्यालय से छुट्टी हो जाती, वे उस दीवार के चारों ओर चक्कर लगाते और अंदर के सुंदर बगीचे के बारे में बात करते। How happy we were there, they said to each other. वे एक दूसरे से कहते, हम वहाँ कितने खुश थे। Then the spring came and all over the country there were little blossoms and little buds. फिर बसंत ऋतु आई, पूरे क्षेत्र में सर्वत्र छोटे छोटे फूल और छोटी छोटी चिड़ियाँ थीं। Only in the garden of the selfish giant it was still winter. केवल उस दानव के बगीचे में अब भी शीत ऋतु थी। The birds did not care to sing in it as there were no children. इसमें पक्षी भी गाने की परवाह नहीं करते थे, क्योंकि उसमें बच्चे ही नहीं थे। And the trees forgot to blossom. और पेड़ फूल लगना ही भूल गए वो पेड़ों पर। Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into ground again and went off to sleep. एक बार एक सुंदर फूल ने घास के बाहर अपना सिर निकाला, पर ज्यों ही उसने सूचना पट्ट देखा, बच्चों के लिए निराशा की बात थी कि वह जमीन में पुनः छुप गया और सो गया। The only people who were pleased were snow and the frost. जो लोग प्रसन्न थे वे थे केवल सिर्फ बर्फ और पाला। Spring has forgotten this garden, they cried. वे चिल्लाए, बसंत इस बगीचे को भूल गया है। So we will live here all the year round. इसलिए हम लोग यहाँ वर्ष भर रहेंगे, पूरे वर्ष रहेंगे। The snow covered up the grass with her great white cloak and frost painted all the trees silver. बर्फ ने अपने विश्वात्मा सफ़ेद लवादे से घास को ढक दिया और पाले ने सारे वृक्षों को सफ़ेद रंग से रंग दिया। Then they invited the north wind to stay with them and he came. बाद में उन्होंने फिर अपने साथ ठहरने के लिए उत्तरी शीत पवन को अपने साथ ठहरने के लिए आमंत्रित किया और वह आ गया। He was wrapped in furs and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down. This is a delightful spot, he said. वह बालदार समूह में लिटा था और सारे दिन बगीचे में इर्द गिर्द गर्जना किया करता और चिमनियों के ढक्कनों को गिरा दिया। उसने कहा कि यह बड़ी मज़ेदार जगह है, हमें शिलावृष्टि मतलब ओलों को आमंत्रित करना चाहिए। We must ask hell on a visit. हमें ओलों को आमंत्रित करना चाहिए। So the hell came. अब ओलावृष्टि का भी आगमन हो गया। Every day 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke out most of the slats, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. प्रतिदिन वह टाइल्स तोड़ नहीं डालता, तब तक 3 घंटे छत पर गर्जना करता रहता जब तक टाइल्स नहीं टूटते। फिर बगीचे के चारों ओर जितनी तेजी से संभव था उतनी तेजी से चक्कर लगाता रहता।
He was dressed in grey and his breath was like ice. उसके वस्त्र भूरे रंग के थे और सांस बर्फ की तरह ठंडी थी. I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. जब वह स्वार्थी दानव अपनी खिड़की के पास बैठता तो बाहर अपने ठंडे सफेद बगीचे को देखता और कहता, समझ में नहीं आता कि अब की बार आने में बसंत को देर क्यों हो गई. He sat window, looked out his cold and white garden. I hope there will be change in the weather. भाई कहता, ठंड में आने में बसंत ऋतु के मौसम में आने में देर क्यों हो गई और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मौसम बदलेगा. बट स्प्रिंग नेवर केम, नॉट द समर. लेकिन बसंत ऋतु का मौसम नहीं आया, ना ही ग्रीष्म. द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, बट टू द जाइंट्स गार्डन शी गेव नन. शरद ऋतु ने हर बगीचे को सुनहरे फल दे दिए, पर दानव के बगीचे में एक भी फल नहीं लगा. He is too selfish, she said. So it was always winter there, and the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees. उसने कहा, वह अत्यंत स्वार्थी है, इसलिए वहाँ हमेशा शीत ऋतु ही रहती और उत्तरी पवन, शिलावृष्टि, पाला, बर्फ बगीचे में नृत्य करते रहते, डांस करते रहते सभी लोग. ये सभी लोग मिलकर ओले, ठंडी हवाएं, पानी, ये सब डांस करते थे. One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. एक दिन जब वो राक्षस जो दानव था सुबह बिस्तर पर पड़ा जाग रहा था, तब उसने कुछ मधुर संगीत सुना. Lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musician passing by. उसके कानों को वह इतना मधुर लगा कि उसने सोचा कि राजा के संगीतज्ञ वहां से गुजर रहे होंगे. It was really only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird sing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. पर यह वास्तव में खिड़की के बाहर गाती हुई कोई लिनेट चिड़िया थी, लेकिन अपने बगीचे में किसी चिड़िया का संगीत सुने उसे इतना लंबा अरसा हो गया था कि उसे यह संसार का सबसे सुंदर संगीत जान पड़ा. Then hell stopped dancing over his head and north wind ceased roaring and delicious perfume came to him through the open casement. फिर उपल वृष्टि जो ओला वृष्टि ने उसके सिर पर नाचना बंद कर दिया, उत्तरी पवन ने गर्जना बंद कर दी, खुली हुई खिड़कियों से मधुर सुगंध आ रही थी. I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. उसने बाहर देखा. What did he see? उसने क्या देखा? He saw a most wonderful sight. उसने देखी आश्चर्यजनक एक सतह, आश्चर्यजनक दृश्य देखा उसने. Through a little hole in the wall, the children had crept in. दीवार की एक सकरी सी दरार में से बच्चे अंदर घुस आए हैं. And they were sitting in the branches of the tree. और भी पेड़ों की डालियों पर बैठे हैं. In every tree that he could see, there was a little child. हर उस पेड़ पर जो उसे दिखाई दे रहा था एक छोटा बच्चा था. And trees were so glad to have the children back again, and they had covered themselves with blossoms. और वृक्ष भी इतने खुश थे क्योंकि बच्चे उनके इर्द गिर्द आ गए थे और उन वृक्षों से फूल लगने लगे थे. पुनः आकर इतने खुश थे कि फूलों से भर गए थे.
and were waving their arms gently above the children's head. और बच्चों के सिरों पर अपने कोमल कोमल हाथ वृक्ष ऐसा लग रहा था जैसे हाथ फेर रहे हों. The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. पक्षी प्रसन्नता से चहचहाते हुए इधर उधर उड़ रहे थे. फूल घास में अपना सिर उठाकर हंस रहे थे. It was a lovely scene. Only in the corner it was still winter. बड़ा प्यारा दृश्य था. केवल एक कोने में अब भी शीत ऋतु थी. It was farthest corner of the garden. वह बगीचे का थोड़े दूर का स्थान था. And in it was standing a little boy. और वहाँ थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ था. He was so small that he could not reach up the branches of the tree. वह इतना छोटा था कि पेड़ की शाखा पर नहीं चढ़ पा रहा था. He was wandering all around it. वह पेड़ के चारों तरफ घूम रहा था. Crying bitterly. और बहुत बुरी तरह से रो रहा था. The poor tree was still quite covered with frost and snow, and north wind was blowing and roaring above it. वह नादान पेड़ केवल शांत रूप से ढका हुआ था. बर्फ से और बर्फ की चादर से उत्तरी हवाएं थी वहाँ पर और गर्जना कर रही थी. Climb, little boy, said the tree. उस छोटे से वृक्ष ने कहा, छोटे से लड़के चढ़ जाओ मेरे ऊपर. He bent and it bent its branches down as low as it could. उसने अपनी शाखाओं को झुका दिया जितनी ज़्यादा वो झुका सकता था. But the boy was too tiny. लेकिन वो छोटा सा लड़का बहुत ही छोटा था. And the giant's heart melted as he looked out. How selfish I have been. जैसे ही उस दानव ने उसको देखा तो उसे लगा, उसका हृदय पिघल गया और उसने ही said, अपने आप से कहा, मैं कितना स्वार्थी था और मैं कितना स्वार्थी हूँ. Now I know why the spring would not come here. अब मैं समझ गया कि क्यों बसंत ऋतु का मौसम यहाँ नहीं आया. I will put that poor little boy on the top of the tree. अब मैं इस छोटे से बच्चे को पेड़ की शिखा के ऊपर बैठा देता हूँ. Then I will knock down the wall. और मैं अब इस दीवार को भी तोड़ दूंगा. And my garden shall be the children's playground forever and ever. और मेरा बगीचा बच्चों के लिए आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए खुला रहेगा. He was really very sorry for what he had done. वह अपने जो उसने कृत्य किया था वह बहुत पश्चाताप करता था और क्षम्य था. When the children saw him, they were so frightened that they all ran away. जब बच्चों ने देखा कि वह दानव आ रहा है तो वह डर गए और सारे दौड़कर भाग गए. The garden became winter again. उस बगीचे में फिर से शीत ऋतु का मौसम आ गया. Only the little boy did not run. केवल वह छोटा सा लड़का नहीं दौड़ा. For his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. केवल वह छोटा सा लड़का नहीं दौड़ा, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे क्योंकि वह दानव को देख नहीं पाया और पेड़ पर तो चढ़ ही नहीं पा रहा था. And the tree broke at once into blossom. The giant stole up behind him and took him gently in his hands. दानव पीछे से धीरे से गया और उसे अपने हाथों में उठा लिया. And put him up into the tree. और पेड़ के ऊपर बैठाल दिया. And the tree broke at once into blossom. And the birds came and sang on it. जैसे ही उसने उसे पेड़ पर बैठाला तो पेड़ से फूल खिल गए, पक्षी आ गए और गाने लगे. And the little boy stretched out his 2 arms and flung them around the giant's neck. उस छोटे से लड़के ने भी अपनी दोनों बाहें बढ़ाकर उस दानव को गले लगा लिया. And kissed him. और उसे स्पर्श किया. And the other children, when they saw giant was not wicked any longer, came running back. जब दूसरे बच्चों ने दूर से देखा कि अब ये दानव इतना ज़्यादा उसकी जो बुरी आदत थी अब वो नहीं है, अब वो इतना दयालु हो गया है, तो वो लोग भी दौड़कर आ गए उनके साथ. और बसंत ऋतु का मौसम भी आ गया. It is your garden now, little children, said the giant.
उस दानव ने बच्चों से कहा, ये बगीचा तुम्हारा है। एंड ही took a great axe and knocked down the wall, और उसने एक बड़ी कुल्हाड़ी उठाई और दीवार को तोड़ दिया। And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. अब जब दोपहर के समय लोग बाजार को जा रहे थे 12 बजे के लगभग, तो उन्होंने पाया कि बगीचे में, जो कि दानव का बगीचा था, बच्चे खेल रहे थे। इससे सुंदर दृश्य उन्होंने ये पहले कभी नहीं देखा था। All day long they played, and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. दिन भर उन्होंने खेला और शाम को बच्चों ने उस दानव से गुड बाय कहकर विदा ले ली। But where is your little companion? He said. The boy, I put it into the tree. The giant loved him best because he had kissed him. अगले दिन फिर से बच्चे खेलने आए तो उस दानव ने कहा, क्यों, वो तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है जिसको मैंने उठाया था, पेड़ पर बैठाया था? वो दानव ने उस बच्चे के लिए बहुत स्नेह किया था क्योंकि उस बच्चे ने उसे स्पर्श किया था। We don't know, answered the children. He has gone away. बच्चों ने कहा, हम नहीं जानते, वो तो जा चुका है। You must tell him to be sure and come here tomorrow. तुम सभी को उससे कहना चाहिए संभावना से पूरी कि उसे यहाँ पर कल फिर आना है। Said the giant. उस दानव ने ये कहा। But the children said that they did not know where he lived. लेकिन बच्चों ने कहा कि हम नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है। And had never seen him before. उन्होंने उसे पहले कभी भी नहीं देखा। And the giant felt very sad. अब उस दानव को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। Every afternoon, प्रत्येक सुबह, when the school was over, children came and played with the giant. जब स्कूल हो जाते पूरे तो बच्चे आते थे और उस दानव के बगीचे में खेलते थे। But the little boy whom the giant loved was never seen again. लेकिन वो छोटा बच्चा जिससे दानव ने स्नेह किया था और उसने भी उससे किया था, वो अब नहीं देखा गया। Giant was very kind to all the children, yet the little boy whom the giant loved was never seen again. दानव ने बच्चों से बहुत स्नेह किया, लेकिन वो छोटा सा बच्चा फिर कभी नहीं देखा गया जिसे पहली बार उस बच्चे ने उससे स्नेह किया था। The giant was very kind to the children, yet he longed for his first little friend and often spoke of him. बच्चों के प्रति वो दयालु था, लेकिन लंबे समय से वह उस पहले दोस्त का इंतजार कर रहा था। अक्सर उसके बारे में पूछा करता था जो उसे पहली बार मिला था। How I would like to see him, he used to say. वह अक्सर कहा करता था कि मैं क्या कभी कैसे उससे मिलूंगा। Years went over and the giant grew very old and feeble. कई साल निकलते चले गए, अब वो दानव बूढ़ा हो गया और थोड़ा कमजोर शरीर हो गया। He could not play about any more. अब वह और नहीं खेल सकता था। So he sat in his armchair and watched the children at their games and admired his garden. अब वह एक आर्म चेयर, जो पहिए वाली जैसी कुर्सी होती है और भुजाओं वाली कुर्सी, उस पर बैठा देख रहा था। बच्चे खेल रहे थे और अपने बगीचे को निहार रहा था। I have many beautiful flowers, he said. उसने अपने आप से कहा, मेरे पास कई सुंदर सुंदर फूल हैं। But children are the most beautiful flowers of all. लेकिन बच्चे इन फूलों से भी ज़्यादा सुंदर फूल हैं। One winter morning he looked out of his window as he was dressing. He did not hate the winter now, for he knew that it was merely the springs asleep. एक ठंड की जो मौसम की शीत ऋतु की सुबह उसने बाहर देखा खिड़की के, जब वह तैयार हो रहा था, तो उसने अब ठंड से नफरत नहीं की, शीत ऋतु से नफरत नहीं की, क्योंकि वो जान गया कि अभी बसंत ऋतु का मौसम सोया हुआ है, इसलिए शीत ऋतु है। एंड दैट फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और फूल विश्राम कर रहे हैं। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड ऑन एंड ऑन। अचानक उसने अपनी आंखों को साफ किया और देखा, क्या चमत्कार, कि वो देखता ही रहा। इट सर्टेनली वॉज मार्वलस लाइट। उसने देखा कि एक अलौकिक रोशनी की किरण उसे दिखाई दी। इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन was a tree quite covered with lovely white blossoms.
दूर कहीं कोने में बगीचे के एक पेड़ फूलों से भरा हुआ था। सुंदर प्यारे फूल लग रहे थे, सफ़ेद। इट्स ब्रांचेस वर ऑल गोल्डन, उसकी जो शाखाएं थीं वो सोने की थीं। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम दैम, और उन पर चांदी के समान फल लटके हुए थे। एंड ऑन अर्थ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उस पेड़ के नीचे वो बच्चा खड़ा हुआ था जो जिसने पहली बार उस दानव से स्नेह किया था। डाउन स्टेयर्स ran द जाइंट इन ए ग्रेट जॉय एंड आउट इनटू द गार्डन, सीढ़ियों से उतरते हुए दानव गया बहुत खुशी के साथ और बाहर निकलकर बगीचे में पहुंच गया। He turned across the grass, और जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए जाकर घास पर जाकर रुक गया। When he came quite close, his face grew red and anger, and he said, जैसे ही उसके पास पहुंचा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, he said, who had dare to wound thee, किसने तुम्हें घायल करने का साहस किया है? For on palms of the child's hand were prints of 2 nails, and prints of 2 nails were on little feet. उसके हाथों के पंजों पर और पैरों पर खरोंच के निशान थे, जैसे नाखूनों के खरोंच के निशान जाते हैं। Who had dared to wound thee, cried the giant. उस दानव ने चीख कर कहा, किसने तुम्हें घायल करने का साहस किया? Tell me, बताओ मुझे, that I may take my big sword and slay him, मैं मेरी बड़ी तलवार उठाऊंगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। Nay, answered the child, but these are the wounds of love. नहीं, उस बच्चे ने उत्तर दिया, ये तो स्नेह के घायल होने के संकेत हैं, स्नेह के संकेत हैं। Who are thou? तुम कौन हो? said the giant, उस दैत्य ने कहा। And strange awe fell on him, and he knelt before द लिटिल चाइल्ड, भाई उसके सामने झुक गया। बड़ी विचित्र अपनी अवस्था से उसने पूछा झुककर छोटे से बच्चे से। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड एट द जाइंट एंड सेड टू हिम, उस बच्चे ने मुस्कुराया और उससे कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुमने मुझे तुम्हारे बगीचे में एक बार खेलने का मौका दिया था। टुडे यू शैल कम विथ मी, आज तुम मेरे साथ आओ। टू माई गार्डन, मैं तुम्हें मेरे बगीचे में लेके चलता हूँ। विच इज़ पैराडाइज, जो कि स्वर्ग है। And when the children ran in the afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. जब बच्चे दोपहर को आए दौड़कर वहाँ, तो उन्होंने पाया कि वो दैत्य लेटा हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई थी और फूल उस पर चढ़े हुए थे। मतलब वो ईश्वर का दूत था एक जो बच्चा, उसने इस दानव के अच्छे कृत्य के लिए उसे एक सदगति प्राप्त करवा दी। Question answers, 1 or 2 sentences. When did the children play in the giant's garden? ये आपको लिखना है। कब बच्चे खेलने जाते थे उस दानव के बगीचे में। Second, why did the giant build a high wall round his garden? क्यों उस दानव ने एक बड़ी दीवार बगीचे के आसपास बना दी। Third, why was the little boy crying? क्यों वो छोटा सा लड़का रो रहा था। For, why was the giant hungry when he came near the child for the final time? क्यों वो दानव क्रोधित हो गया था जब वह आखिरी समय में उस बच्चे के पास आया। सेक्शन बी, why is the giant in the story called selfish? इस कहानी में दानव को स्वार्थी क्यों कहा गया है। सेकेंड, why did spring not come to the giant's garden? क्यों बसंत ऋतु का मौसम दानव के बगीचे में नहीं आया। थर्ड, द जाइंट saw a most wonderful sight, describe what he saw. दानव ने एक आश्चर्यजनक सतह देखी, उसका वर्णन कीजिए उसने क्या देखा। फोर, why did the giant feel sad even when the children came regularly to play in his garden? क्यों दानव ने महसूस किया दुखी अपने आप में जब बच्चे नियमित रूप से बगीचे में खेलने आते थे। Who was the little boy? Where did he take the giant and why? वह छोटा सा लड़का कौन था और कहाँ वह उस दानव को ले गया और क्यों। सेक्शन सी, एक्सप्लेन व्हाट डज द स्टोरी टेलर मीन बाय स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन इज दिस गार्डन द स्नो एंड द फ्रॉस्ट क्राइड सो वी विल लीव हेयर ऑल द ईयर राउंड। व्याख्या कीजिए इस कहानी में
इस वाक्य की, इन वाक्यों की, कि बसंत ऋतु का मौसम तो इस बगीचे के लिए भूल चुका है। बर्फ और ओले ने चीख कर कहा, अब हम लोग यहाँ पर साल भर रहेंगे। बर्फ, शीत हवाएं, उत्तरी पवन और ओलों ने कहा था हम साल भर रहेंगे। तो अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।